Namaskar dosto, welcome to the session for today. So today we are going to discuss again for the paper 2, it's a guide for CFF paper 2. Today we are going to discuss is basically about the report writing. What should be the format? What points should be taken into consideration while writing the report for your CFF paper 2. और इसके साथ साथ मैं कुछ अनाउंसमेंट्स भी बताना चाहता हूँ यहाँ पर. On Unacademy, we are having the classes with you people from Takshila classes. So if anybody of you want to join this Unacademy platform for online courses for CAPF, CDS and FCAT, they can definitely join Unacademy by using this referral code Prateek Takshila, where you will be getting a 10% off on the subscription and a comprehensive coverage for the syllabus will be done on that platform. Online classes for this Unacademy Plus, they can use this referral code to get 10% off on the subscription. कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा अनाउंस करना चाहूँगा. लाइक ग्रैंड कॉम्बो ऑफर इज गोइंग टू बी देयर टिल 31 जुलाई. अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं फॉर CDS, FCAT एंड CFF, यू विल बी गेटिंग 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फ्री फॉर SSB. तो कोई भी बंदा जो भी ज्वाइन करना चाहता है, इसके साथ साथ आपको 10% ऑफ भी मिलेगा इस रेफरल कोड को यूज करने से. Prateek Takshila. So definitely it's a good platform where you are going to have a best educators throughout the country for all of the subjects of your examination. CDS का, CFF का, maths का, CFF, FCAT, all these examinations will be covered in this subscription here. नया बैच स्टार्ट हो रहा 14th जुलाई से and it's going to be a comprehensive batch where all the educators are going to take up the classes with you people for OTA. राइट, जिसमें आपको पता है GS और इंग्लिश होता है. तो ऑल दीज एजुकेटर्स आर गोइंग टू टेक अप द सब्जेक्ट्स विद यू पीपल विद अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर जनरल स्टडीज एज वेल एज इंग्लिश. So please do join Unacademy Plus by using this referral code Prateek Takshila. आइए जरा आप समझें इस चीज को कि क्या रिपोर्ट राइटिंग में क्या चाहता है एग्जामिनर, कैसा होना चाहिए, हाउ वन शुड बी एबल टू राइट डाउन द रिपोर्ट. सबसे पहले आप सभी को पता है कि 2 रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चंस होंगे और पैटर्न है कि दोनों रिपोर्ट्स आपको 200 वर्ड्स में लिखनी है. 200 वर्ड्स में एक रिपोर्ट लिखनी है. तो सेकंड क्वेश्चन फॉर आवर माइंड इज हाउ टू अप्रोच. whenever you are writing a report, you need to assume yourself as a reporter, editor या correspondent of a newspaper. मतलब आप किसी न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहे हो या एडिटर हो, तो आप उसके बारे लिख रहे हो, किसी चीज़ के बारे रिपोर्ट लिख रहे हो. तो नेचुरली इसमें आप अपना कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डालोगे. इट शुड बी अनबायस्ड अबाउट राइटिंग दीज रिपोर्ट्स एंड यू शुड नॉट बिहेव लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. इट शुड बी अ वेरी न्यूट्रल वन. आपका जो रिपोर्ट हो दैट शुड बी वेरी न्यूट्रल. इट शुड नॉट बी लाइक अ प्रो और एंटी एनी वन. थर्ड पॉइंट, what all are you are knowing, right, but that should be a balanced way. Again same point है कि balanced approach होना चाहिए, neutrally balanced approach होना चाहिए रिपोर्ट लिखने में. और हमेशा याद रखिएगा रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है बिकॉज इट इज अ रिपोर्ट विद द इंसिडेंट विच हैज हैपेंड, उसके ऊपर लिख रहे हैं हम बिकॉज द इवेंट ऑलरेडी हैपेंड, सो यू आर जस्ट रिपोर्टिंग दैट. So it should be always in the past tense. Third thing, the last thing, don't give your suggestion in report and don't write in point format. Again both points are very important. आपको अपना suggestion नहीं लिखना. You are not a politician, you are just a reporter. So just put up your suggestion, don't put up your suggestions and try to write the report in points format. That's again very important for you to remember. report को point format में लिखिए. अब अगर हम बात करें फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, टॉप कॉर्नर लेफ्ट से on the top left corner of the report, write the correspondent, editor, assistant or etc. Write the name of correspondent in the form of ABC or in any case actual name. Below that write name of the newspaper. Simply write Sunday Special or ABC News. Then write the place, simply your city of exam, and below that write the date. If you know about any data, committee report or any reference of a renowned person's quote, then don't give your own judgment or opinion. क्लियर है जी. अगर आपको कोई रिपोर्ट की कोट है, कोई पर्सन की कोट है, उसको रखिए
या कोई डेटा है उसको आप रख सकते हो, लेकिन अपनी जजमेंट या अपना ओपिनियन नहीं लिखना रिपोर्ट में। I hope everybody is clear about this. What is the format of report writing? That is very important. The last point, what should be the composition of the report? कोशिश करें 3 से 4 पैराग्राफ में रिपोर्ट को लिखने की। And there is no fixed pattern, no certain fixed pattern over here. First paragraph, try to introduce the topic. Second paragraph, give the details of incident or any reference or quotation from any famous personality. एग्जाम्पल कॉज, कॉन्सिक्वेंसेज, इफेक्ट्स एंड द रीजंस। समझ आ गया जी। इंट्रोडक्शन लिखे पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में डिटेल्स लिखिए इंसिडेंट्स की, रेफरेंस लिखें, पर्सनैलिटी, सब चीज़ें, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज को कोशिश करें लिखने की। मेन स्टेप्स, एक्टिविटीज, एक्शंस दैट शुड बी टेकन, एंड द लास्ट पैराग्राफ ट्राई टू कंक्लूड दैट मीन्स सॉर्ट ऑफ जजमेंट, दैट इज अ रिएक्शन और प्रॉमिसेस बाय द अथॉरिटी और द स्टेटमेंट ऑफ द पीपल। तो दिस इज बेसिकली अ फॉर्मेट, अ कॉम्पोजिशन, किस प्रकार आपको रिपोर्ट लिखनी चाहिए। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं, 3 से 4 पैराग्राफ एक नॉर्मल रिपोर्ट में बन जाते हैं। और हमेशा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सेकंड में आप डिटेल लिखेंगे इंसिडेंट के बारे, कुछ भी रेफरेंसेस, सारा कुछ, फेमस पर्सनैलिटी, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज को। थर्ड में स्टेप्स विच द गवर्नमेंट शुड हैव टेकन अप, एंड द लास्ट पैराग्राफ टू कंक्लूड। तो ये एक रिपोर्ट का फॉर्मेट हो गया, कॉम्पोजिशन होगा रिपोर्ट का। तो ये थी जी चीज़ें जो आज मेरे को डिस्कस करनी थी आपको रिपोर्ट राइटिंग में। मैं हर रोज़ आपके साथ कैसे प्रीसी राइटिंग का एक प्रॉपर बना चुका हूँ, कैसे फॉर्मेट हो रही, हाउ वन शुड बी राइटिंग डाउन फॉर CFF पेपर 2, एंड नाउ वी हैव डिस्कस इज अबाउट रिपोर्ट। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस हाउ टू अटेम्प्ट द कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू अटेम्प्ट दिस पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, how one should be able to write down the things here. फॉर्मेट काफ़ी ज़रूरी है आपके पेपर के लिए, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कैसे लिखना, ये भी ज़रूरी है हमारे पेपर में अटेम्प्ट के लिए। तो जी आप लोगों में से जिनको भी अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना हो तो इस रेफरल कोड को ज़रूर लगाएं, प्रतीक तक्षशिला। और अभी आपको भी शायद पता होगा कि 15 तारीख तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कॉस्ट अभी काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। आफ्टर दैट 15 द रेट्स आर गोइंग टू बी हाई, सो 15 जुलाई तक आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं एट तक्षशिला क्लासेस इन चंडीगढ़ फॉर CDS, CFF एंड FCAT. So if anybody of you want to join that, definitely they can join offline courses also. So thank you, wish you all the best. Jai Hind everyone.